اور آج میں آپ کے سامنے جو کردار بائبل میں سے پیش کروں گا وہ ہے فلیمون. اور ہم پڑھیں گے فلیمون کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک. یہاں لکھا ہے پالوس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فلیمون اور بہن افیا اور اپنے ہم سپاہ ارخبس اور فلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام فضل اور اطمینان ہمارے خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے. کہ یہ آمین. یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے ایک خط میں سے ہے اور وہ خط پالوس رسول نے لکھا تھا فلیمون کو. اور آج ہم فلیمون کے بارے میں بہت کچھ غور کریں گے. تو پالوس نے ایک خط کلسے کی کلیسیا کو لکھا جو بائبل میں ہے، جس کو کہتے ہیں کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط. ایک خط لکھا کلسے کی کلیسیا کو یعنی کلسیوں کے نام جو خط ہے، اور ایک خط فلیمون کو لکھا. دو خط لکھے. یہ سن 60 سے 62 تک یہ خداوند کو آسمان پہ گئے تقریباً 30 سال ہو چکے تھے اور پالوس جیل میں ہے، قید میں ہے اور صرف 2 خطوط لکھے. اور یہ 2 خطوط جو ہیں 2 آدمیوں کو دیے. ایک کا نام تھا انیسموس اور دوسرے کا نام ہے توخکس. تو تھوڑا سا مشکل نام ہے، رومی نام ہے. تو انیسموس اور توخکس 2 لوگوں کو وہ خطوط دیے اور کہا جاؤ جا کے کلسے میں یہ خط دے دو. ایک تو کلسیوں کی کلیسیا جو ہے وہاں جا کے دینا، اور یہ خط جو ہے لدوکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے، وہاں بھی پڑھا جائے، اور دوسرا خط جو ہے فلیمون کو دینا. تو سن 60 اور 62 ان سالوں کے درمیان پالوس نے خط لکھا. وہ 2 لوگوں کے ہاتھ یہ خط بھیجا. آئیے پڑھتے ہیں کلسیوں 4 باب، اس کی 7ویں آیت اور بعد میں پڑھیں گے 9ویں آیت. پیارا بھائی اور دیانتدار خادم توخکس جو خداوند میں ہم خدمت ہے، میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا. 9ویں آیت. اور اس کے ساتھ انیسموس کو بھی بھیجا ہے جو دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے، یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دے گا. تو آئیے فلیمون کی بات سیکھتے ہیں. فلیمون کلسے شہر کا رہنے والا ایک دولت مند آدمی تھا. ترکی کے ازمیر کے علاقے میں، ابھی بھی ازمیر کا علاقہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں پہ یہ ساری جو کلیسیاں ہیں جو مکاشفہ میں لکھی ہے وہ اس علاقے میں تھی. اور یہ جو کلسے شہر ہے یہ بھی ازمیر کے علاقے میں تھا، کشمیر میں، یہ ترکی میں. تو وہاں پر کلسے شہر میں فلیمون پیدا ہوا جو ایک دولت مند شخص تھا، امیر آدمی تھا، نوکر چاکر تھے، یہاں تک کہ غلام بھی تھے. اس دور میں غلام رکھنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لوگ غلام خریدتے تھے منڈی سے، منڈی لگتی تھی اور لوگ اپنی پسند کا غلام خریدتے تھے، یا کئیوں کو نسل در نسل دادا پردادا سے بھی غلام ملتے تھے. اب یہ جو فلیمون ہے اس کے پاس بھی غلام بھی تھے، نوکر چاکر بھی تھے، بڑا امیر آدمی تھا. اور پھر کیا ہوا، ایک دن پالوس اپنے تیسرے مشنری سفر کے دوران تیموتھیوس اور لوکا کے ساتھ کلسے کے علاقے میں آیا. ہلو، آپ سن رہے ہیں؟ پالوس رسول اپنے تیسرے مشنری سفر کے دوران ترکی کے علاقے میں گیا. وہاں جو علاقہ تھا آسیا کا علاقہ، ایک بہت بڑا صوبہ آسیا جس میں بہت سے شہر تھے، اس میں کلسے بھی تھا. اور وہاں جا کے پالوس اور اس کے ساتھیوں نے زبردست برادری کی، کلیسیا قائم ہوئی، اور کلسے میں بھی خداوند کا کام ہوا، کلسے میں بھی کلیسیا قائم ہوئی، اور کلسے میں فلیمون بھی مسیح پر ایمان لے آیا. بولے ہالےلویا، بولے ہالےلویا. آج غریب لوگوں کو پکڑنا ہو تو آسان لگتا ہے، جلدی خداوند کو قبول کرتے ہیں. اور امیر جو ہے اس گھمنڈ میں ہے، میں دولت مند ہوں، مجھے کیا چاہیے، میرے پاس سب کچھ ہے. ارے سب کچھ ہے، نجات ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے. بتائیں نجات ہے، گناہوں کی معافی ہے، یسوع کے خون سے دھلے ہیں. اگر نہیں دھلے تو دنیا کے بدنصیب شخص ہیں. تو فلیمون دولت مند تھا، یسوع مسیح کے پاس آ گیا اور کلسے
के इलाके में उसने मसीह को कबूल कर लिया और फिर एक बड़ा लीडर बन गया। बोले हालेलुया। कलीसिया में लीडर दौलतमंद था। कलीसिया में लीडर जो है नौकर होते हैं, नौकर होते हैं कलीसिया में जो लीडर है। लोगों को बैठाना, लोगों को उठाना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के घरों का हालचाल पूछना, विजिट करना, ये लीडर नहीं, ये नौकर होते हैं, ये कैदी होते हैं मसीह के भी। और फिलेमोन जो एक अमीर आदमी था, दौलतमंद आदमी था, नौकर चाकर और हर तरह का उसके पास दौलत थी, गुलाम थे, फिर भी वो लीडर बन गया, कलीसिया में खिदमत करना शुरू कर दी। बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और कलीसिया का सपोर्टर बन गया। पैसा था, उसने कहा पैसा तो है, चलो कलीसिया पे खर्च करो। और सुनिए, उसने अपने घर में कलीसिया शुरू की। और भाई बाइबल का पैटर्न ही यही है, बाइबल का पैटर्न ही यही है। 200 साल तक कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी, घरों में कलीसियाएं होती थी। तो जो फिलेमोन है दौलतमंद भी है, उसने अपना घर खोल दिया कलीसिया के लिए, मेरे घर में चर्च लगा करेगा। चल उसके घर में कलीसिया थी। और एक नाम आपने सुना शुरू में जब मैंने पढ़ा, अफिया, बहन अफिया। पौलुस कहते हैं बहन अफिया, और मैंने उसके बारे में स्टडी की। वो गालिबन फिलेमोन की वाइफ थी और उनके घर में कलीसिया लगती थी। मुकद्दसीन उनके घर में जमा होते थे और तमाम कलीसिया और तमाम कलीसिया से मोहब्बत करने वाला शख्स था ये। अब उसकी जब चंद खूबियां हैं वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। अब सुनना चाहते हैं फिलेमोन के बारे में? पहली बात मैंने बताई कि ये शख्स जो है ये पौलुस को प्यारा है, और पौलुस कहता है मेरा प्यारा, मेरा हम खिदमत। और फिर वो कहता है कि वो जिसके घर में कलीसिया है। फिर पौलुस इतना बड़ा खातम कहता है मेरी तरफ से फिलेमोन को सलाम है जिसके घर में कलीसिया है। और फिर वो कहता है ये एक ऐसा शख्स है जो मुकद्दसों से मोहब्बत करता है। फिर पौलुस उसके बारे में आप पढ़ के आए होंगे फिलेमोन का खत। पौलुस उसके बारे में कहते हैं कि उसके ईमान का शोरा पूरे इलाके में फैल गया है। इस कदर ईमान है उसका, इस कदर ईमानदार है कि पूरे तुर्की के इलाके में, अजमीर के इलाके में, आसिया के सूबे में, कुलसे के इलाके में उसकी शोहरत फैल चुकी है। पौलुस कहता है उसके जबरदस्त ईमान के बारे में कहता है कि वो ऐसा मर्द ईमान है जिसकी शोहरत फैल चुकी है। फिर पौलुस लिखता है कि वो सब मुकद्दसों के दिलों को ताजा रखता है। हेलो, कलीसिया में लोग परेशान भी होते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी की चोरी हो गई, किसी को बीमारी आ गई, कोई बुखार आ गया, कोई कर्ज चढ़ गया, कोई रिश्ते नहीं हो रहे, कई मसले कलीसिया में होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। तो पौलुस कहता है फिलेमोन के बारे में ये सब मुकद्दसों के दिलों को ताजा कर देता है। इसका मतलब है गरीब हो या अमीर, कलीसिया जो उसके घर में है, एक एक शख्स से वो मिलता है, एक एक शख्स के गले लगाता है, उसका हालचाल पूछता है और मुकद्दसीन के दिलों को ताजा कर देता है। हालेलुया। घर से परेशान आते हैं, फिलेमोन से मिलते हैं, उनके चेहरे हर्षाश हो जाते हैं। पौलुस कहता है कि वो मुकद्दसीन के दिलों को ताजा रखने वाला शख्स है। पौलुस फिलेमोन को कहता है कि मेरा तुझ में एक कर्ज है। कर्ज ये है कि मैंने जैसे तुझे बचाया, तुझ पर कर्ज है, ये कर्ज तुझे उतारना है और लोगों को बचाना है। बोले हालेलुया। इसका मतलब है अगर कोई किसी की तालीम देने से, अगर किसी की मदद करने से मसीह पर ईमान लाया है तो वो कर्जदार है। रूथ जैसे मैं आपकी मिसाल देता, फर्ज के लिए मैंने आपको कलाम सुनाया, आप मेरी कर्जदार है। ये कर्जा कैसे उतरेगा? ऐसे उतरेगा जैसे मैंने कलाम सुनाया, जाओ जाकर पूरी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो, लोगों को मसीह के पास लेके आओ, और उस कहता तू मेरा कर्जदार है। ठीक है। तो फिलेमोन पहला बात 19 में लिखा है मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू खुद है। मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू खुद है। ये मैंने एक कर्ज था जो मैंने पूरा किया, अब तू मेरा कर्जदार है। और फिर एक और क्वालिटी फिलेमोन की जो पौलुस बताते हैं अपने खत में, वो है कि पौलुस को फिलेमोन की फरमाबरदारी याद है और यकीन है, और अपने खत में कहता है मैंने तुझे फरमाबरदार पाया है।
تو اوبیڈینٹ بھی ہے، فرمانبردار بھی ہے، تو وفادار بھی ہے۔ کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں اور کتنی خوشی ہوتی ہوگی پولس کو کہ میرے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا آج کہاں ہے؟ وفادار ہے، فرمانبردار ہے، روئے بچا رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، گھر کھول دیا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، اور پھر جینرس ہے، فراخ دلی سے سب کچھ کر رہا ہے۔ کتنا اس کا دل خوش ہوتا ہوگا۔ فلیمون کو خط کیوں لکھا؟ فلیمون کے نام کیوں لکھا؟ ایک تو پولس نے اس کی زندگی کو بچایا، اس کا حال چال پتا کرنا تھا، لیکن خاص ایک بات ہے، اب یہ غور سے سن لیجیے۔ اور پھر بائبل میں کیوں شامل کیا یہ خط؟ بائبل میں ہے اس لیے کہ ہم فلیمون کی طرح بن جائیں۔ جو خوبیاں فلیمون میں، فلیمون کے خط میں، فلیمون کے بارے میں پائی جاتی ہیں، وہ ہم میں پائی جائیں۔ تو فلیمون کو خط کیوں لکھا؟ ایک کہانی سنیے۔ کہانی کتنے جو کہانی سننا چاہتے ہیں سنو گے کہانی؟ اس زمانے میں غلام رکھنا کوئی بری بات نہیں تھی۔ بعد میں تحریک چلی کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، اس زمانے میں یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ تو فلیمون کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا انیسموس۔ اب پتہ نہیں کہ فلیمون نے اس کو پیسہ دے کے منڈی سے خریدا ہے یا باپ دادا سے وہ جدید پشتی ان کا غلام ہے، بہرحال غلاموں سے بہت سخت کام کروایا جاتا تھا۔ لیکن سارے غلاموں سے نہیں، کچھ ایسے غلام ہوتے تھے جن کو بڑی اہم ذمہ داریاں دی جاتی تھی، گھر کا بندوبست دے دیتے تھے غلاموں کو، اور بڑی اہم ذمہ داریاں، بڑا اعتبار بھی ان پہ ہوتا تھا۔ لیکن انیسموس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا غلام تھا، لیکن فلیمون کا غلام تھا۔ اور ہوا یہ کہ انیسموس غلامی کی حالت میں پتہ نہیں کیسے اس کے گھر سے بھاگ گیا۔ حالانکہ اس زمانے میں، یہ میرے کان کی طرف دیکھیں، میرے طرف دیکھیں، میرے کان کی طرف، غلاموں کے کانوں میں بالی بنا دی جاتی تھی کہ اگر وہ بھاگ جائے تو لوگ اس کو پکڑ لیں اور کہیں کہ یہ غلام ہے، اس کے مالک تک پہنچا دیں۔ شاید اس نے بالی اتار دی ہو، بھاگ گیا اور بھاگ کر روم میں چلا گیا۔ ظاہر بات ہے دور ہی جانا تھا، نزدیک ہوتا تو پکڑا جانا تھا، روم چلا گیا۔ اور روم میں نے آپ کو بتایا کہ پولس کتنے سال تک ہاؤس ریسٹ رہا، گھر میں نظم کتنے سال رہا؟ ہلو، کتنے سال تک؟ اب کسی نے اس کی ملاقات پولس سے کروا دی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے انیسموس کا پولس کے پاس لے آیا اور کہا، پولس دیکھ، تو نے میری زندگی بچائی ہے، تو نے اس قید کی حالت میں کتنی بڑی کلیسیا قائم کر دی ہے، اس 2 سال کے عرصے میں تو نے روم میں بیداری لا دی ہے، روم کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ میں ایک شخص کو لے کے آیا ہوں، یہ بگوڑا ہے، یہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، یہ کلسے سے آیا ہے، اب میں تیرے پاس لے کے آیا ہوں، اس کو نجات کی تعلیم دے۔ اور پولس نے اس کو بتایا، یسوع مسیح ہوا، دفن ہوا اور جی اٹھا، اسے قبول کر لے، توبہ کر لے، نجات پا لے۔ اور انیسموس نے کہا، اے پیارے خداوند یسوع مسیح، میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر، میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر دے، مجھے نجات دے دے، مجھے نئی پیدائش دے دے، میں نجات یافتہ بن جاؤں۔ پولس کے سمجھانے پہ، تعلیم دینے پہ انیسموس یسوع مسیح کا شاگرد بن گیا۔ بولے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ انیسموس کے لیے تالیاں بجا دیں۔ بھاگا ہوا غلام پولس کے ہاتھوں مسیح کا شاگرد بن گیا۔ اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر غلام پکڑا جائے تو اگر کوئی اس کو اپنے پاس رکھ لے تو جتنے میں مالک نے وہ غلام خریدا تھا اس کی قیمت اسے ادا کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص غلام کو پکڑتا ہے، بھاگے ہوئے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو جس کا پہلے غلام ہے اس کو قیمت دینی پڑتی تھی، ورنہ اس پہ کیس چل جاتا تھا۔ پولس کے پاس جب آیا، انیسموس ایک بہترین مسیحی بن گیا۔ بولے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، یہ بولیے ہاللیلویا۔ انیسموس بہترین مسیحی بن گیا، شاگرد بن گیا پولس کا، اور مسیح کا شاگرد بھی بن گیا۔ اور وہ جب مسیح کے پاس آیا تو زندگی بچ گئی۔ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ہلو، آپ تیار ہیں؟ آپ قرضدار ہیں، مسیح کے قرضدار ہیں، مسیح کے قیدی ہیں۔ انیسموس
को एक शख्स मसीह के पास लाया, उसकी जिंदगी बदल गई। आप लोगों को मसीह के पास लाए, लोगों की जिंदगी बदल जाए। बोले हालेलुया। आज बात करें, मैं किसी ना किसी को मसीह के पास लाऊंगा। मिशन में लाने की बात नहीं है, चर्च में लाने की बात नहीं है, जिंदगी बदलने की बात है। जैसे क्रिसमस को कोई लेके आया और जिंदगी बदल गई, आप लोगों को मसीह के पास लेकर आना है और उसकी जिंदगी बदल जाए, ताकि वो कहे जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आप पे डिपेंड करता है। लोग मर रहे हैं, गुनाह में हैं, बदी में हैं, तावीज़ों में हैं और जादूगरी में लिपटे हुए हैं, बदबुओं के शिकार हैं, बीमारियों के शिकार हैं, गलत तालीमात का शिकार हैं, गलत तालीमात के पीछे लगे हुए हैं। यीशु मसीह की पहचान नहीं है, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं और वो दमदस्त है, तहीदस्त है, यीशु मसीह को नहीं जानते, गरीब है। ऐसे लोगों को मसीह के पास लेकर आना है। पर ये यहूदा का खत, उसका पहला बाब 22वीं 23वीं आयत। ये यहूदा कौन है? यहूदा इस्करियोती है। कितनों का ख्याल है कि यहूदा इस्करियोती? भाई जी आपका क्या ख्याल है? ये यहूदा इस्करियोती है जिसका खत है? उसका तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ये कौन सा यहूदा है? यीशु मसीह का भाई मरियम और यूसुफ से यीशु मसीह के जी उठने के बाद मसीह पे ईमान लाया था। तो यहूदा अपने खत में लिखता है, पहला बाब 22वीं 23वीं आयत लिखता है, और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो। तो ये यहूदा कह रहा है रहम करो लोगों पे, आग में झपट जाओ, आग में कूद पड़ो, ले आओ लोगों को निकाल के। आज लोग गुनाह की आग में पड़े हुए हैं। शायद आपका हस्बैंड गुनाह में है, आप यीशु को कबूल कर चुकी हैं। शायद आप यीशु मसीह को कबूल करके निजात पाकर कलीसिया के रूप में, आपका हस्बैंड शायद अभी भी शराब बेचता है, शायद अभी भी वो तौबा नहीं की, आप अभी भी आपका हस्बैंड फासिक हुआ है, या हस्बैंड अगर मसीह के पास आ चुका है, निजात पा चुका है, बीवी अभी तक खुदा से दूर है, आप पे कर्ज है, मसीह के पास लेके झपट कर, आग में झपट कर बचा ले उसको। और दुनिया में बेशुमार लोग हैं, आप बाहर निकल के तो देखें, आप मसीह के पास लोगों को देखें। पौलुस रसूल ने जब खत लिखा फिलेमोन को, और खत ओनेसिमुस और तखतुस के नाम हाथ से भेजा, तो उसमें उसने ओनेसिमुस की बड़ी तारीफ की। ओनेसिमुस को के बारे में पौलुस ने क्या कहा फिलेमोन को? पहला बाब 10वीं आयत देखा। सो अपने फरजंद ओनेसिमुस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, पौलुस कह रहा है मैं कैद में था, मुझसे एक फरजंद पैदा हुआ, मेरा बेटा पैदा हुआ, और वो ओनेसिमुस है, वो तेरे पास आएगा खत लेकर, उसे कबूल कर लेना। तो पौलुस उसे कह रहा है ये मेरा फरजंद है। आप जिनको नजात दी, आपने उसको बच्चे समझे, अगर आप उम्र में बढ़ा दिया है, उसको अपने फरजंद जान के उसकी पॉलिश करें, उसको मसीह के पास लाएं। तो हम कैद तो नहीं है, लेकिन पौलुस की तरह हम भी जन्म दे सकते हैं। पौलुस कैद में बच्चे पैदा कर रहा है, कैद में लोग मसीह के पास लेके आ रहा है, कहता है ओनेसिमुस मेरा फरजंद है। फिलिप्पियों 4 बाब 19वीं आयत यानी कि ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर से जन्मने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। पौलुस कहता है पहले मैंने तुम्हें जन्म दिया, तौबा की तालीम दी, निजात की तालीम दी, तुम्हें पैदा किया, खुदा के फरजंद बने, अभी भी मुझे जन्मने के से दर्द है, और मैं उस वक्त तक दर्द में रहूंगा जब तक तुम मसीह के हम सूरत ना बन जाओ, जब मसीह के हम कद ना बन जाओ, मसीह के कद के अंदाजे तक ना बन जाओ, जब तक कि मसीह की मानव जिंदगी बसर ना करो, तब तक मुझे दर्द लगे रहेंगे। आपसे कहना चाहता हूं ईमानदारों, अगर तौबा की तालीम देते हैं, पहले बचाओ और फिर उसकी जिंदगी तब्दील करने तक आप डरने सहमे नहीं, बचाने की फिक्र में रहे। फिर ओनेसिमुस के बारे में पौलुस की तारीफ ही कलमा। पहली बात वो कहते हैं मेरा फरजंद है, दूसरी बात वो कहते हैं पहले ये निकम्मा था। आप फिलिप्पियों में पढ़ ले खत में जाके, पहले वो निकम्मा था, तेरे किसी काम का नहीं, अब वो तेरे काम का भी है, मेरे काम का भी है, अब वो तुम्हें बचाएगा। फिलिप्पियों पहले आपकी 11वीं आयत वो कहता है कि ये तेरे काम का भी है, मेरे काम का भी है, पहले निकम्मा था, अब ये खिदमत करेगा तेरे साथ। फिर वो एक बात और लिखता है ओनेसिमुस के बारे में, कहता है फिलिप्पियों ओनेसिमुस तेरे पास आ रहा है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है।
रात रसूल लफ्ज़ की मिलते हैं कलेजे का टुकड़ा। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, He is my own heart, ये मेरा दिल है जो तुझे भेज रहा हूँ, ये तेरे पास आ रहा है। अब इसको दोबारा गुलाम नहीं बना लेना, ये मैं इसको भेज रहा हूँ, तू वैसे भी मेरा कर्जदार है, इसका कर्जा उतार देना, इसके अपनी कलीसिया में शामिल कर देना। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आपसे कहना चाहता हूँ, पहले मसीह के लिए जीते, फिर उसे मोहब्बत रखें। गुलाम की तरह दोबारा नहीं रखना, भाई की तरह। गलतियों 3 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, गलतियों 3 बाब 27वीं 28वीं आयत में लिखा है, जितने लोग मसीह को कबूल करते हैं, अब मसीह में ना कोई गुलाम रहा ना आजाद। अनीसमुस को अपना गुलाम ना समझना, अब कोई गुलाम नहीं, कोई आजाद नहीं, मसीह को कबूल करने वाले सब एक है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, मोटा नहीं, पतला नहीं, अमेरिकन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, जितनों ने मसीह को कबूल किया, मसीह को पहन लिया, सब बराबर है। बोले हालेलुया। और फिलिप्पियों को लिखता है पौलुस कि वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसे गुलाम नहीं, अपना भाई बना के कबूल करना। और एक और बात लिखता है, अगर वो तेरा नुकसान करके भाग गया है, मेरे खाते में डाल दे। पहले कहते मेरे खाते में डाल दे, फिर कहता है वैसे भी तू मेरा कर्जदार है ही, तो डाल देगा तो ठीक है, अगर वैसे भी तू मेरा कर्जदार है, माफ कर देगा तो माफ कर दे। और हिस्ट्री कहती है फिलिप्पियों में उसको माफ कर देगा। तालियां नहीं जाएंगे फिलिप्पियों के लिए। फिलिप्पियों की जिंदगी से 4 सबक। मुसाफिर परवर था, मेहमान नवाज था, हॉस्पिटैलिटी का जज्बा उसके अंदर था, घर में कलीसिया बनाई हुई थी, घर खोला हुआ था, रुपया खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, घर वालों को खाने खिलाए जा रहे हैं, मालिकों से लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। बाइबल में घरों में कलीसिया कायम करने का काफी जिक्र आपको मिलेगा। एक दो का बताता हूँ। रोमियो 16 बाब में और पहले 16 बाब में एक जोड़ा है, परसिक्ला और एक्विला, इन्होंने भी घर में कलीसिया शुरू की थी। ये भी फिलेमोन की तरह मालिकों से भी मदद करते थे, हर तरीके से कलीसिया को अपने घर में रखा होता। फिर कुर्सियों के 4 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, लदूकिया में एक शख्स निम्फास था, लदूकिया में एक शख्स निम्फास था, उसके घर में भी कलीसिया थी। और भी है माल की किताबें, लेकिन और वक्त नहीं है कि बयान करूं। तो जो फिलेमोन है मुआफ करने वाला है, जेनरस है, फराख दिल है, और फिर मोहब्बत रखने वाला है, दुश्मनों को माफ करने वाला है। और हिस्ट्री कहती है अनीसमुस बाद में कुलसे का बिशप बन गया। तालियां भी बजाएंगे अनीसमुस के लिए, उसने कसूर माफ किए। कितनों को दुआएं लानी आती है? सब आती है। एक आयत पढ़ ले, मैं कलाम खत्म कर रहा हूं। मत्ती 6 बाब 15 में आए, शायद आपका कोई कसूर करके भाग गया हो। फिलेमोन का कसूर करके कौन भागा था? कौन भागा था? हेलो, फिलेमोन का कसूर करके, नुकसान करके कौन भागा था? अनीसमुस। उसने क्या किया? फिलेमोन ने माफ कर दिया। देखिए मत्ती 6 बाब 15 में आए, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। किसी की गलती हो जाए माफ कर दें, 1 दफा नहीं, 7 दफा नहीं, 70 दफा नहीं, माफ करते रहेंगे। और फिलेमोन के बारे में लिखा है वो वफादार था, फरमाबरदार था। आइए